اور وادی بر میں موسم پھر ہوا خراب، پہاڑی علاقوں میں برفباری، میدانی علاقوں میں بارشیں، سردیوں میں ہوا اضافہ، کئی سڑک رابطہ منقطع، بجلی کا نام و نشان نہیں، کل سے موسم میں بہتری کی امید۔ السلام علیکم ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان کا سری نگر اسٹوڈیو سے آپ تک سلام پہنچے۔ جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کی چند اہم خبریں شامل پروگرام ہوں گی، لیکن نیوزی لینڈ اور نامیبیا کے بیچ میں اس وقت مقابلہ جاری ہے اور نامیبیا کی ٹیم شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ 60 رنز تک پہنچتے پہنچتے 3 وکٹیں گر چکی ہے اور 163 رنز چاہیے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے۔ آج شام بھارت کے وقت کے مطابق 7:30 بجے اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ ٹیم انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تفصیلات ذرا دیر بعد۔ شروعات کرتے ہیں سری نگر سے ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ناظرین، سری نگر کے انتہائی اہم ترین جگہ JVC بیمنا سری نگر کے نزدیک آج گولیاں چلنے کے نتیجے میں ڈوڈا کا ایک اہم شہری زخمی ہوا۔ JVC بیمنا کے نزدیک گولی چلنے کے نتیجے میں ڈوڈا کا 19 برس کا شہری زخمی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق سکمز JVC کے نزدیک پولیس نے خصوصی ناکہ لگایا تھا۔ اس دوران اچانک فائرنگ کے نتیجے میں ڈوڈا کا نوجوان مسعود احمد ولد صفدر علی زخمی ہوا۔ دائیں بازو میں ان کے گولی لگی جبکہ پیٹھ پہ بھی انہیں زخم لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سری نگر کے LET کمانڈر کی پولیس کو پیشگی اطلاع ملنے کے بعد JVC کے نزدیک سول کپڑوں میں پولیس اہلکاروں نے خصوصی ناکہ لگایا تھا۔ اس کے بعد گولی چلی اور پسٹل کا استعمال کیا گیا، لال رنگ کی گاڑی کا استعمال کیا گیا۔ اتفاق سے اس سے قبل نزدیکی اسپتال میں بھی لال رنگ کی گاڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ جنوبی کشمیر کے کئی حملوں میں ملیٹنٹوں نے لال رنگ کی ہی گاڑی استعمال کی تھی اور ذرائع کے مطابق آج کے اس حملے میں بھی حملہ آوروں نے لال رنگ کی گاڑی کا استعمال کیا تھا۔ پولیس نے ناکہ تیز کر کے تلاشی کارروائی کا آغاز کیا۔ جی ہاں، آج JVC بیمنا سری نگر کے نزدیک سپہر کے قریب گولی چلنے کے واقعے کے بعد پولیس نے تحقیقاتی عمل تیز کر دیا۔ JVC بیمنا اور بٹمالو کے دور دراز علاقوں میں آخری اطلاعات ملنے تک پولیس نے اپنا ناکہ مزید سخت کر دیا اور کئی علاقوں میں بھی تلاشی کارروائیاں جاری رکھی۔ اور ناظرین، کشتواڑ سے ہمارے نمائندے کے مطابق کشتواڑ میں آج پولیس اہلکار اجیت سنگھ اپنی ہی سروس رائفل SLR سے زخمی ہوئے اور بعد میں زخمی حالت میں اسے اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی جہاں انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ واضح رہے کہ اجیت سنگھ کشتواڑ میں ایک خصوصی ناکہ ڈیوٹی پر مامور تھا کہ اچانک ان کی اپنی ہی سروس رائفل سے گولی چلی اور جس سے مذکورہ پولیس اہلکار کی جان چلی گئی۔ پولیس نے اس ضمن میں بھی FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی آج پولیس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران DYSP ہیڈ کوارٹر محمد شفیع نے SSP پلوامہ غلام جیلانی وانی کی ہدایت پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران DYSP نے کہا کہ کئی گرفتاریاں ہو چکی ہے اور کئی گرفتاریاں متوقع ہے۔ DYSP ہیڈ کوارٹر پلوامہ محمد شفیع نے آج SSP کی ہدایت پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ DYSP کے مطابق پرسو پلوامہ کے ایک چھاپے کے دوران 13 بوتلیں NDPS عمران شیخ کے قبضے سے برآمد کی گئی۔ ڈگری کالج پلوامہ کے نزدیک 110 ٹیبلٹس بھی وہاں سے پکڑی گئی ہے اور گور احمد نجار جو گاڑی کو چلا رہا تھا ان کی گاڑی گرینڈ I-10 سے ضبط کی گئی، جبکہ 1700 ٹیبلٹ بعد میں جب گنتی کی گئی تو اس گاڑی سے ضبط کی گئی، جبکہ 117 کوڈین بوتلیں بھی اس سے برآمد کی گئی۔ DYSP ہیڈ کوارٹر پلوامہ محمد شفیع نے ذرائع ابلاغ کو بتایا۔ نجار یہ پنگلینا کا ایک شخص ہے، اس سے یہ ڈرگز حاصل کرتا ہے۔ اس نے اس کے انکشاف پہ ہم نے بعد میں ایک ناکہ لگایا اور اس ناکے پہ ہم نے گوہر احمد نجار کو بھی پکڑ لیا۔ تو یہ گرینڈ I-10 ایک گاڑی تھی، گرینڈ I-10 گاڑی میں یہ ڈرگز لے کے آ رہا تھا۔ اس میں ہم نے امیجیٹلی وہاں پہ اینگزٹ کی 900 ٹیبلٹس، اینگزٹ 0.5، پیٹرل ڈی کی 800 ٹیبلٹس، کل 1700 ٹیبلٹس، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے قبضے سے کوڈین کی بوٹلز ہم نے یہ اسی وقت ہم نے سیز کر لی، اور یہ جو دوائی اس کے گھر سے ملی تھی، جو ڈرگز اس کے گھر سے ملا تھا عمران کے گھر سے، وہی ڈرگز ہمیں اس کے قبضے سے بھی ملے۔ تو ہم نے اس کو اریسٹ کر کے گرفتار کر کے لایا
तो मजीद पूछताछ हो गई। मजीद पूछताछ के दौरान हमें कुछ और डिस्क्लोजर्स मिले, जिन डिस्क्लोजर्स के मुताबिक एक और शख्स जावेद अहमद डार सनाब बशीर अहमद डार, ये टहब का रहने वाला एक यहाँ पे ये एक दवाई का काम करता है। इसका जावेद एंटरप्राइज के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो ये इस शख्स का इस्तेमाल करके दवाई लाते थे बाहर से। ये भी एक पोर्ट था दवाई उठाने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और उसके बाद हमें एक और लिंक मिली, किसी के लिंक से, गौहर की लिंक से। हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजमुल के साथ इस वक्त मुल्क भर में देख रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टा पे आप इस वक्त बराह रास्त इस नशरियात को टेलीविजन चैनल के साथ साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, दरबार मुँह की मुंतकली का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर जारी किया था बीते साल में और कहा था कि जम्मू और श्रीनगर में बैकवक्त दरबार मुँह जो है वो चालू रहेगा। और दरबार मुँह के शिफ्ट पर, चूंकि कश्मीर में सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और लगातार जम्मू में कई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, एहतजाज भी हुए और सियासी नव्यत के जो बयानात भी जारी होने लगे, जिसके बाद ये मांग बढ़ी थी कि चूंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ती है और गुज़श्ता कई दिनों से बिजली की हालत को आप देख पा रहे हैं, इसलिए दरबार मुँह को अब कैपिटल शिफ्ट के जरिए से जम्मू भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब श्रीनगर से दरबार मुँह की मुंतकली के हुक्मनामे को मजीद मॉडिफिकेशन के साथ ज़रूरत के मुताबिक मुलाजमीन का मुँह हो सकता है। इस ज़िम्न में सरकारी हुक्मनामे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एस्टेट डिपार्टमेंट को मुँह के साथ जाने वाले मुलाजमीन की फहरिस्त जारी की है और सरकारी रिहाइश गाहों की दोबारा चाबियां उनके हवाले करने के अहकाम सादर किए गए। वाज़ेह है कि श्रीनगर बेस्ड या कश्मीर बेस्ड जो दरबार मुँह से मुंसलिक मुलाजमीन हैं, उन्हें इमसाल अपनी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की चाबियां एस्टेट डिपार्टमेंट को वापस लौटानी पड़ी, क्योंकि हुक्मनामा था कि कश्मीर में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से मुलाजमीन अपने घर से ज़्यादा दूर, अपने फैमिली से ज़्यादा दूर न रहें, ताकि एहतियात ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और उसके ऐन मुताबिक कश्मीर में और जम्मू में बैक वक्त दरबार मुँह लगाए गए, लेकिन अब ताज़ा मॉडिफिकेशन ऑर्डर किया गया, जिसमें अब हिदायत जारी कर दिए गए कि HODs, डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर जनरल्स, राजभवन, पुलिस हेडक्वार्टर्स और दीगर दरबार मुँह से मुंसलिक जो दफातर हैं, उनके मुलाजमीन जो दर्जा चाहरम और उसके बाद सीनियर असिस्टेंट वगैरह जो साथ में जाते हैं, अगर HOD अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुलाजमीन के फहरिस्त देगा और उसके बाद इन मुलाजमीन का मुँह दरबार मुँह जो है वो जम्मू जाएगा। और जम्मू में चूँकि रिहायशी इलाके जो हैं, रेजिडेंशियल एरियाज जो उनके थे, उनमें पहले ही उन्हें अपनी फीस वगैरह अदा करने के बाद चाबियां वापस ली गई थी। अब दोबारा जो मुलाजमीन किसी भी दर्जे के हों, जिन्हें सरकारी एकोमोडेशन दी गई थी, उन्हें वापस वो चाबियां दी जाएंगी और उसके बाद दरबार मुँह के लिए जम्मू में इस साल दोबारा दरबार सजने की उम्मीद है। कैपिटल शिफ्ट होगा और जिसे वहाँ के कारोबारी, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स ने ज़बरदस्त वेलकम किया हुआ है। इसी बीच में श्रीनगर में भी तमाम ज़रूरियात के मुताबिक HODs और मुंतज़मीन जो मुख्तलिफ UTs के सरबराह हैं, वो कश्मीर में भी रहेंगे, जम्मू में भी रहेंगे, ताकि अवाम को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सकें। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासी पस मंज़र में दोबारा वापस लौटते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक न्यूज़ पोर्टल के साथ ख़ुसूसी बातचीत के दौरान इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कश्मीर तो आए, सिर्फ पुलिस से मिले, ना ही लोगों से मिले, डाउन टाउन तक नहीं गए। उन्होंने इंतबाह किया कि काश लोगों के दिलों की बात सुनते तो पता लगता कि सरकार कहाँ पर खड़ी है। ताकत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, डराया जा सकता है, लेकिन एक दिन डर टूट जाएगा और आतशफिशां पहाड़ की तरफ फट जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। अमित शाह साहब यहाँ आए थे, उन्होंने दौरा किया यहाँ, किनसे मिले? क्या हमारे लोगों से मिले? क्या सेंट्रल गए यहाँ पे डाउनटाउन में, वहाँ लोगों से बात की? बैठे रहे राजभवन में? आखिर बात किससे करनी है? अगर उन्हें पुलिस वालों से बात करनी है, जैसे वो पुलवामा में गए और वहाँ पुलिस कैंप में रहे रात को, उनसे बात की ना, तो लोगों से तो बात नहीं की।
लोगों के दिलों की बात तो सुनते तो पता लगता उनको कि हम कहाँ खड़े हैं। ताकत की बात करते हो तो ताकत का तो ठीक है, करो तुम अपनी ताकत की बात। ताकत से लोग नहीं आएंगे, ताकत से तुम डरा सकोगे, मगर एक दिन ये डर टूट जाएगा और ये आतशफशां पहाड़ फट जाएगा। उससे डरो, उससे डरो जो है, देख रहा है तुम्हारे अमाल क्या है। पहले हमसे वादा किया, जब हम प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी गए, कि सब स्टेटहुड होगा। आज कहते हैं नहीं, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद हम इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड करेंगे। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, ये सीधे नहीं है। ये आपको ट्रंकेटेड स्टेटहुड देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग नीचे पीछे हट जाएं और ये लोग यहाँ इलेक्शन जीत जाएं और फिर दुनिया को दिखाएंगे हमने क्या इलेक्शन जीता है। उसका जवाब हम इनको देंगे वक्त पे। देखिए, प्रधानमंत्री से जब हम मिले थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की दूरी कम करनी और इस दूरी को हमने कम करना है। क्या इनके निकालने से दिल्ली की दूरी कम होगी? क्या लोगों में मोहब्बत और बढ़ेगी? बल्कि मैं तो समझता हूँ इससे और भी नफरत पैदा होगी और उस नफरत को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हुकूमत जो कल आएगी उसके लिए इसको ठीक करना आसान नहीं होगा। तो यही तो हम कहते हैं कि मीडिया फ्री नहीं है, कोई अगर वो जानते भी हैं वो लिख नहीं सकते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल न्यूज़ पोर्टल से बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि अमित शाह के दौरे के दौरान उन्हें अवाम से मिलना चाहिए था, डाउनटाउन दूर दराज इलाकों तक जाना चाहिए था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म की उस मीटिंग के बाद जो बातें वहाँ पे हुई उससे अमलाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना और वज़ीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता समेत सुनील शर्मा और दीगर लीडरान ने आज शंकराचार्य के मंदिर में हाजिरी दी और खुसूसी पूजा पाठ की। इस दौरान ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हदबंदी अमल ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं और अवाम के रद्द-अमल से लगता है कि सरकार बीजेपी की ही आएगी। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद तो किए, सफ़र थोड़ा सा दूर होगा, महंगा होगा, लेकिन अज़ाइम और इरादे रुकेंगे नहीं। ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान ने कश्मीर से मक्का मदीना और शारजाह जाने वाली जो हमारी फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस बंद किया है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा पाकिस्तान ने छल किया है, कपट किया है। ये यात्रा तो जाएगी, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की तो क्या हुआ, यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारे यहाँ के लोगों को जो शारजाह या अरब के देशों में या मक्का मदीना जाएंगे उनको थोड़ा ज्यादा समय जहाज में बैठना पड़ेगा। यात्रा तो कभी नहीं रुकेगी, फ्लाइट तो शारजाह भी जाएगी और सऊदी अरब भी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो जम्मू कश्मीर के लोग। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों अपर रीचस में गुरेज, कुपवाड़ा, करना, साधना टॉप और दीगर इलाकों में आज हल्की बर्फबारी का आगाज सुबह से ही शुरू हुआ। हमारे नुमाइंदों के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम की लगातार बर्फबारी के नतीजे में अबूर व मरूर पर बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। इस बीच में मुगल रोड बंद, गुरेज रोड बंद और दीगर अहम शाहरा और राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में भी लगातार बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा खलल पड़ा है। इमसाल बर्फबारी कबल अज़ वक्त हुई, सर्दियों में शदीद इजाफा हुआ और लेह, कारगिल, लद्दाख के कई इलाकों में टेम्परेचर माइनस तक चला गया, जबकि शहरी श्रीनगर और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दियों के बीच में इस वक्त शब रोज़ गुजारने पर लोग काफ़ी मजबूर हो चुके हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया और दूर दराज इलाकों में जाकर उन्होंने इंतज़ामिया को तैयारी की हालत में रहने के अहकाम जारी किए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया और दूर दराज इलाकों में बीकन और दीगर अमले को बरवक्त तैयार रहने की सलाह दी ताकि बर्फबारी के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उससे निपटने के लिए देहबाशों और शहरियों को
परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत के दौरान कहा, इस वक्त जो हमने सिचुएशन एसेस की है, सुबह भी बालाई इलाकों में जैसे जेड गली है, फरकिन टॉप है, साधना टॉप है, वहाँ का जो सिचुएशन हमने कलेक्ट किया तो वहाँ 3 से लेके 5 इंच तक जो है बर्फ़ जमा हुई है, जिस सिलसिले में हमने कोई 11 बजे हमने एक एडवाइजरी निकाली है, जिसमें हमने सभी जो ड्राइवर हजरात हैं और लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि मोमेंट जो कि लाइफ जो है बड़ी कीमती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं और वी आर नॉट अलाउइंग। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि अचानक बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में भी सूरत हाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे हिदायत जारी करते हुए मुलाजमिन से कहा कि वो तैयारी की हालत में रहें। ताज़ा बर्फबारी के तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की है, जो आज अलल सुबह गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में देखने को मिली। मकामी सयाहों के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद ने आज गुलमर्ग के आसपास के इलाकों में जाकर सेल्फी बनाई, खींची, और उसके बाद जो स्नो स्कूटर्स वगैरह अब मकामी तौर पर यहाँ पर तैयार रखे जाते हैं, सयाहों के लिए भी और मकामी लोगों के भी तैयारी की हालत में रखे गए हैं। सयाहों ने बर्फ़ का इस्तकबाल किया, लेकिन मकामी लोगों ने कहा कि पानी, बिजली और बाकी ज़रूरियात भी अगर चलती रही तो इस बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे आज सुबह से ही बारिशें शुरू हुई, वही सेहत इम्काम गुलमर्ग में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर बताएंगे कि आज सुबह से जो है बर्फबारी शुरू है और यहाँ पर कुछ सयाह जो है जो बाहर से आए हैं वो बर्फबारी, ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे तो कैसा लगा आपको, और सबसे पहले आपका नाम जानना सर, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है जी। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छा बर्फ पड़ रहा है। मुझे इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन कश्मीर लगा है, बहुत अच्छी चीज है कश्मीर। और मैं ये कहना चाहूंगा जो भी भाई अगर घूमने की तमन्ना रखते हो तो कश्मीर आके जरूर घूमिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। नाम अनीस है, हम गुजरात से। गुलमर्ग में बर्फबारी से सयाह जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे। इधर महकमे मौसमियात के सरपरस्त सोनम लोटस ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। शाम तक भी ये मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का संभावना है, कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों पे दरमियान दर्जे की बर्फ़ होंगे। जैसे अभी तक एक खबर ये है कि गुरेज में जैसे राजधान टॉप है वहाँ पे 8 इंच तक बर्फ़ हुआ है। इसी तरह मैदानी इलाकों में आलमी कप T20 में नामीबिया को अब मैच जीतने के लिए 32 गेंदों पर 78 रन चाहिए, जबकि उनकी अभी 6 विकेटें मौजूद हैं। 14.4 गेंदों का खेल हो चुका है। आज शाम 7:30 बजे भारत के वक्त के मुताबिक इंतहाई अहम मुकाबला अब स्कॉटलैंड और भारत के बीच में होगा। भारत के लिए मैच जीतना बड़े मार्जिन के साथ लाजमी है, क्योंकि बीते मैच में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टीम कोहली टीम इंडिया के साथ आज के इस मुकाबले में 7:30 बजे खुसूसी नशरियात में दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की अहम खबरों का ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ चाहता है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।